Hello everyone, I'm Jasina Paris and I welcome you all to today's daily news analysis. आज है 13 September 2025 and we're going to be seeing important articles from the Hindu and the Indian Express. So let's begin. आज का जो पहला आर्टिकल है, this is in continuation with regard to the recent happenings in Nepal. So here we find कि जब नेपाल के प्राइम मिनिस्टर KP ओली शर्मा ने रिजाइन कर लिया, they now have a new prime minister. Now this is a historical first because this is the first female prime minister of Nepal. तो इनका नाम है सुशीला खड़की. Okay, Sushila Karki, she is the first female prime minister of Nepal. That's why this is important. Further हम देखते हैं, she has held the position of chief justice. ठीक है, she was also the former chief justice. That is why this is relevant. Who is the president of Nepal? The president of Nepal, यहाँ पे आप देख सकते हैं, it is Ramchandra Pudel. I'm going to write it here so you can note it down. Ramchandra Pudel is the president of Nepal. Let's now quickly understand, little revision करते हैं अभी तक क्या हुआ है. So here we find she is the first woman prime minister और elections, actual elections कब होंगे? That will happen in March, on March 5th 2026. यानी अगले साल they're going to have proper fresh elections, right? So she recently took the oath as a prime minister. Now we'll see कि protest जो हो रहे थे, the Gen Z protest, right? Now what is the Gen Z protest? Because the trigger of course was the banning of social media websites. However, इस पे अभी रोक लगाई गई है. And we see the other reasons for the protest that happened. It is because of the corruption in the Nepal government, the nepotism या जो nepo babies term कर दिया था. So all of these were the reasons why the Gen Z protested. Then we also see 19 people died, were killed in fact, mainly जब ये protest erupt हुए, जो police है उन्होंने fire कर दिया, the tear gas spray कर दिया. So all of the reasons led to even igniting further these protests. Now who led these protests? This is by the Sudan Gurung, that is the leader. And ये जो protesters हैं, they consider their leader also कि एक काठमांडू का मेयर है जिसका नाम है बलेंद्र शाह, a rapper turned politician, बलेंद्र शाह. Now here they selected prime minister mainly by these two people. They endorsed कि हाँ ठीक है, she can be the next prime minister. So it was endorsed by these two important leaders leading also the protest. And here we see जो army है will be behaving as the key facilitator to ensure peace and calm in the region. तो ये अभी तक जो हमने पढ़ा है. And let us now proceed to the next article. अगला जो article है is हमारे vice president का oath अभी हुआ है. So now we'll just quickly understand. I remember telling you a few days ago जब CP Radhakrishna was selected as the vice president, I called it as the 17th vice president because that was given in the Hindu as 17th vice president. Now what is the reason? वहाँ पे 17 देखा है, यहाँ पे 15 देखा है. 17th term if we have to talk about, that is of a vice president. But कितने vice president? Because some vice presidents have had double terms, right? तो अगर हम person को count करें, then this guy is the 15th vice president. So I hope that is made clear. Now of course you will have the question, मैम अगर exam में ऐसा आया तो हम क्या mark करें? आपको mark करना है 15th only. Okay, because which number हम term wise से count नहीं कर रहे हैं, हम people से count कर रहे हैं. And this one is the 15th vice president. So who is the vice president? Let us quickly revise. CP Radhakrishna is the VP now. And ये the ruling party से you can say support किए गए हैं. He had 152 votes extra as compared to the opposition who was a former Supreme Court judge as well. तो यहाँ पे हम देखते हैं CP राधाकृष्णा के बारे में. He was a former governor of Jharkhand as well as currently he was serving as a governor of Maharashtra. Of course he had to resign from this post if he has to continue as the vice president. Now इन्होंने जो oath है ये किसको दिया था? So when you come into office, you have to give your oath that you will perform your duties well. तो ये जो oath है, एक vice president
देता है प्रेसिडेंट को। नाउ अगर क्वेश्चन आता है कि प्रेसिडेंट अपना ओथ किसको देता है, द आंसर इज CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नाउ अगर रेजिग्नेशन की बात करें, बिकॉज इनके पहले जो वाइस प्रेसिडेंट थे उन्होंने रिजाइन कर लिया था, जो है जगदीप धनखड़, तो वाइस प्रेसिडेंट गिव्स हिज रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं, they give it back to the vice president. So vice president gives resignation to president, president gives resignation to vice president. So this is something that you have to remember. What is a minimum age required to be eligible as a vice president or a president or a governor? The answer is 35 years. Do we have an upper age limit? The answer is no. So 35 years is the minimum age required to be the vice president. And हमने already बहुत कुछ किया है vice president के appointment, removal in the past week. So I am not going to be repeating that. And in case you have not watched इस week का कुछ भी miss किया है आपने, please ensure that you watch it. फर्दर ये जो अभी तक प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट कौन कौन से रहे हैं, आई विल लाइक टू हैव अ क्विक रिविजन ऑफ द सेम। सो फर्स्टली वी हैव सर्वपल्ली राधाकृष्ण हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये 2 टर्म्स के लिए रह चुके हैं, 52 एंड 57। बट द लॉन्गेस्ट एवर सर्विंग वाइस प्रेसिडेंट की बात करें देन इट इज हमीद अंसारी। ठीक है, हमीद अंसारी, दैट वाज इन 2007 एंड 2012। फर्दर हम देखते हैं Zakir Hussain, V.V. Giri. Now V.V. Giri was the first to resign from the office. Okay. Then we have G.S. Pathak, B.D. Jatti, Hidayatullah, R. Venkatraman. This was the second person to resign. R. Venkatraman in 1984. Then S.D. Sharma, Shankar Dayal Sharma, K.R. Narayan, Krishnakant, first who died in office while being a vice president, right? He died in the office. Next, Bhairo Singh Shekhawat, then Hamid Ansari, and 2017 में कौन थे? It was Venkaiah Naidu. वेंकैया नायडू 17 से लेके 22 तक, और 2022 तक कौन, 2022 में आए हैं जगदीप धनखड़, एंड 2025 में सो अगेन Jagdeep Dhankar resigned citing health issues. So we have the next one who was C.P. Radhakrishna. C.P. Radhakrishna. ठीक है, so अभी if you count you will have 15 of them, counting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and now 15. ओके, बट अगर आप टर्म्स कंटिन्यू, बिकॉज ये डबल टर्म किया है इसीलिए इनका टर्म अभी 17th टर्म हो जाएगा। इज दैट क्लियर? लेट्स प्रोसीड नाउ टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अगला आर्टिकल है मैन्यूस्क्रिप्ट्स के बारे में। सो फ्यू वीक्स अगो आई डिस्कस्ड विद यू कि 11th से लेके 13th तक हम एक कॉन्फ्रेंस होगा मैन्यूस्क्रिप्ट्स पर। मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या है, उसका मिशन क्या है, ये सब हम देखेंगे। बट बिफोर दैट, व्हाट डिड प्राइम मिनिस्टर से और हाउ डिड ही एड्रेस इन दिस कॉन्फ्रेंस, ये हम देखते हैं। नाउ देयर इज अ स्पेशल रीजन आल्सो व्हाई दिस वाज कंसिडर्ड और दिस वाज हेल्ड विद इन दीज डेट्स। कैन यू टेल मी, क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी कवर किया है कुछ दिन पहले, कि व्हाट वाज द रीजन व्हाई दे सिलेक्टेड 11th through the 13th? Does it also coincide with any other historical information? Maybe somebody gave a speech somewhere. ठीक है, ये एक आपके लिए हिंट है, आप मुझे बता दीजिएगा। Let's now proceed to understand what is the conference called. It is called as Reclaiming India's Knowledge Legacy through Manuscript हेरिटेज। तो ये कॉन्फ्रेंस के द्वारा प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हमको हमारे जो पास्ट हिस्ट्री है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स है, इसको प्रिजर्व करना है, और बेस्ट वे टू प्रिजर्व इन दिस डिजिटल एज इज टू डिजिटलाइज इट, डिजिटाइजेशन ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट, टू क्रिएट अ डेटाबेस ऑफ इट, ताकि हमारे फ्यूचर जनरेशंस को हमारे हिस्ट्री के बारे में जानकारी हो। फर्दर हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट
मैन्यूस्क्रिप्ट कलेक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंडिया में सबसे ज्यादा ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स पाए जाते हैं, अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़, एंड अभी तक कितने डिजिटाइज किए हैं? 10 लाख डिजिटाइज किए हैं। फर्दर इंडिया इज वर्किंग विद कंट्रीज, कौन से कंट्रीज के साथ हम काम कर रहे हैं फॉर दिस? थाईलैंड, वियतनाम एंड मंगोलिया। तो यहाँ पे जो कल्चरल टाइज हम शेयर करते हैं, मेनी ऑफ द स्क्रिप्ट्स दैट दे हैव आल्सो हैव इंडियन ओरिजिन, तो हम शेयर कर रहे हैं विद रिगार्ड टू दिस डेटा। फर्दर we also seen that we've launched in the union budget of 25-26 the ज्ञान भारतम मिशन। तो ज्ञान भारतम मिशन क्या है अभी देखते हैं, एंड एक पोर्टल भी किया है ताकि हम पूरा इस डेटा को डिजिटाइज, प्रिजर्व और शेयर करें अपना एंशिएंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स। नाउ लेट्स कम टू द अंडरस्टैंडिंग व्हाट डू यू मीन बाय मैन्यूस्क्रिप्ट्स। मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैंड रिटन, हाथ से लिखे गए कॉम्पोजिशंस हैं दैट आर ऑन मटीरियल्स लाइक पेपर, बार्क, क्लॉथ, मेटल या लीव्स पे भी। तो जो हाथ से लिखे गए चीजें हैं अलग अलग वस्तुओं पे, उसको बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। नाउ इफ आई हैव टू टर्म समबडी एज अ मैन्यूस्क्रिप्ट, समथिंग एज अ मैन्यूस्क्रिप्ट, कितने साल पुराना होना चाहिए? डू राइट योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस बट आई वांट यू टू सी इफ यू रिमेंबर दिस। सो मैन्यूस्क्रिप्ट कहलाने के लिए कितने साल पुराना होना चाहिए, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। Further, let us see the different kind of missions that we've ever had. तो 2003 में we've had the National Manuscript Mission. So ये launch किया था Ministry of Culture ने, and who was the major body who implemented this? It was the Indira Gandhi National Center for Arts, जो establish खुद किया है 1987, ताकि research, academics या art के form में ज़्यादा वो encouragement करे, प्रोत्साहन करे, data निकाले, रिसर्च करे। सो ऑल ऑफ दैट इज द वर्क ऑफ द इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स। सो इनका काम क्या था? टू assimilate some sort of manuscripts, to find out, to study about them, to preserve them. अभी इसको ये रिवैम्प किया है, द नेशनल मैन्यूस्क्रिप्ट मिशन को रिवैम्प किया है अंडर द ज्ञान भारतम मिशन विच वॉज लॉन्च्ड दिस ईयर इन 2025। तो इस मिशन में हम क्या कर रहे हैं? वी आर डिजिटाइजिंग इट। तो पहले हम बस प्रिजर्व कर रहे थे, अभी हम इसको डिजिटाइज करके कंजर्व कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, डिजिटाइज कर रहे हैं। 1 करोड़ जितने हमारे पास हैं, अभी तक कितने किए हैं? अभी तक हमने किए हैं 10 लाख। सो इसमें से हम बोल सकते हैं कि 1 मिलियन हमने डिजिटाइज किया है। फर्दर academic institutions, म्यूजियम, लाइब्रेरीज, प्राइवेट कलेक्शंस और जो है उसका भी डेटा हम ले रहे हैं। फर्दर हम एक नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी क्रिएट कर रहे हैं ताकि एवरीथिंग इज मेड असेसिबल टू दोज डूइंग रिसर्च, टू स्टूडेंट्स, टू पब्लिक वर्ल्ड वाइड। सो इसलिए इसका मतलब है शेयर करना दूसरे से हमारे पास जो भी नॉलेज है। सो दिस इज ऑल विद रिगार्ड टू द ज्ञान भारत मिशन। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल हम देख रहे हैं, इट इज विद रिगार्ड टू मोदी जी आज के दिन विजिट करने वाले हैं मणिपुर, राइट? नाउ दिस इज अ वेरी अगेन हिस्टोरिकल इवेंट, बिकॉज जो मणिपुर में हम क्लैश देख रहे थे उसके बाद ही इज विजिटिंग दिस प्लेस नाउ। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड इन दिस आर्टिकल इश्यूज बताए हैं अभी करंटली मणिपुर के, एंड विल ऑल्सो थ्रो लाइट ऑन व्हाट हैपेंड इन मणिपुर। तो उसके बैकग्राउंड कुछ देखते हैं, उसका इंफॉर्मेशन देखते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। ओके, नाउ मणिपुर की बात करें, इट कंसिस्ट ऑफ मेनी ट्राइबल ग्रुप्स, राइट? सो एक है मेतीस, कुकीज, नागास, these are the predominant ones। तो मेतीस जो है ये वैली में रहते हैं, यूजुअली द इम्फाल रीजन, राइट? सो दे आर मेनली हिंदूज and Metis Sanamahi. Next is Cookies. They are mainly the tribal hill. So ये hills में रहते हैं. Okay, and then you also find them mainly Christians. And then third one you've got the Nagas. Now Metis जो है इनका जो ये मेजॉरिटी में है, सो दैट्स मेजॉरिटी ऑफ ओवर 50%, और पॉलिटिक्स में भी ये बहुत ही फेमस है। बट ये एज आई सेड ये सिर्फ वैली रीजन में रहते हैं। तो कहाँ पे रहते हैं ये? इम्फाल में। सो इनके पास लैंड, सो पॉपुलेशन ज्यादा है बट लैंड इज मेनली 10%।
Okay, now similarly Kukis and Nagas की बात करें, as you said they are hill communities, तो ये 90% of the Manipur hills में रहते हैं, so they have the largest share of land. Now this led to a little conflict जब मणिपुर की हाई कोर्ट ने मणिपुर के गवर्नमेंट से कहा कि तुम मैतीस को शेड्यूल्ड ट्राइब्स का स्टेटस दे दो. ओके, स्टेट में तुम इनको शेड्यूल्ड ट्राइब्स का स्टेटस दे दो. तो कुकीज को ये पसंद नहीं आया. व्हाई डिड कुकीज अपोज दिस? बिकॉज कुकीज को लगा अभी मैतीस जो है, जो इम्फाल में है, दे विल नाउ कम टू देयर लैंड, द हिल लैंड्स, और उनका यहाँ पे मार्जिनलाइजेशन हो जाएगा. दे विल बी लेफ्ट विद नथिंग, राइट. इनका जो मैतीस का और भी ज्यादा डोमिनेंस होगा. सो दैट इज वेयर clashes occurred. ठीक है, so cookies opposed कि उनका जो land rights है वो छीना जाएगा, because only if you have an ST status you can take land in the hill areas. अगर आपके पास ST status नहीं है, you can't buy hill land. Okay, you can't buy land in the hills. तो इसीलिए ये झगड़ा हो गया. Now let's understand what is the current situation and what are the issues that are currently in Manipur. फर्स्ट इशू हम देखते हैं कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट चला 27 months, यानी कि ओवर 2 years दिस कॉन्फ्लिक्ट इरप्टेड. फर्दर 57,000 यहाँ पे लोग डिस्प्लेस हुए, एक जगह से दूसरे जगह गए एंड कैंप्स में रहने लगे इन दीज 2 years. गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था 3-phase सेटलमेंट प्लान, रीसेटलमेंट प्लान. ओके, बट ये जो प्रोग्रेस है बहुत ही स्लो है. सो कैंप से उनको वापस से लेके जाने के लिए, बट द प्रोसेस दैट वी सी इज करंटली गोइंग वेरी स्लो. द सेकेंड इशू दैट वी सी इज फ्री मूवमेंट इन द स्टेट. अभी हम देखते हैं कि जो वैली हिल बाउंड्रीज हम देखते हैं, सो आई टोल्ड यू वैली इज वेयर द मैतीस स्टे, हिल इज वेयर द कुकीज आर. ना ये बाउंड्रीज बने इनटू बफर जोन्स, और यहाँ पे जो बफर जोन्स में कौन है? दे आर सिक्योरिटी फोर्सेस. सो नाउ देयर इज नो प्रॉपर मूवमेंट फ्रॉम हिल टू वैली एंड वैली टू हिल. ये बंद किया गया था, बीच में ओपन भी किया था, पर अगेन लेड टू क्लैशेस एंड ऑल. सो दैट इज वेयर वी सी दैट कम्युनिटीज आर कट ऑफ नाउ, कि जो हिल में रहते हैं हिल में रहते हैं, जो वैली में रहते हैं वैली में रहते हैं. एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि मैतीज दैट वी सी आर कन्फाइंड टू हिल्स एंड कुकीज आर ब्लॉक्ड फ्रॉम इम्फाल. दैट मीन्स दे कांट गो टू द valley region, right? I told you where, because they stay in the hills. So this is only a movement of essential goods होता है, but people to people ties जो है ये इफेक्ट हो रहे हैं, ये अभी बंद हो चुके हैं. So that is another cause of concern with regard to harmony among these regions. The third issue that we see is dialogue between the communities. Now violence जो है 2 साल के पहले से तो कम हुआ है, 2023 में जब वायलेंस हुआ था उससे तो कम है, बट डायरेक्ट यहाँ पे बातचीत नहीं हो रही है. There's no direct dialogue. ठीक है, तो सेंटर अलग अलग कम्युनिटी से अलग अलग टॉक्स कर रही है. So recently they signed something called as SOO पैक्ट, जिसको बोलते हैं सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस, राइट. तो ये किस कम्युनिटी के साथ उन्होंने साइन किया था? सेंट्रल गवर्नमेंट ने साइन किया था कुकीजो इंसर्जेंट्स के साथ. ये पैक्ट क्लॉज में हम देखते हैं मणिपुर की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को रिस्पेक्ट करेगा ये SOO. ओके, बट ये कुकीज के डिमांड को कॉन्ट्रडिक्ट करता है, बिकॉज कुकीज क्या चाहते हैं? कुकीज चाहते कि वो जो रीजन है विल बी डिक्लेयर्ड एज UT, उनका जो रीजन है विल बी डिक्लेयर्ड एज UT along with legislature. Of course मैतीस को ये पसंद नहीं है. So पैक्ट does not talk about this. So कुकीज को लगता है कि ये क्यों नहीं लिखा है, और मैतीस तो ये नहीं चाहते हैं कि कुकीज को ये मिले, ये राइट मिले. The fourth issue is वहां पे गवर्नमेंट कैसी है. हमको पता है कि 2025 में जो बीरेन्द्र सिंह हैं उनके चीफ मिनिस्टर रिजाइन कर चुके हैं, एंड फर्दर यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया है. अभी तक प्रेसिडेंट रूल है, एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि सेंटर अभी भी सोच रही है क्या प्रेसिडेंट रूल हटाया जाए या नहीं. अभी तक ये रिलक्टेंट है टू रिमूव द प्रेसिडेंट रूल. नाउ क्वेश्चन हियर इज, सबसे लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन के लिए कहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा, एज वेल एज अगर हम कितने बार, ओके, द टाइम, नंबर ऑफ टाइम्स जहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा, ये कौन सा स्टेट है, ये आपको मुझे बताना है. सो 2 questions here. First is
longest duration, and how many number of times a president rule has been applied? You have to tell me in the comment section. Further, the last issue that we see is the border situation. Now we know कि म्यांमार का border लगता है मणिपुर को. So यहाँ पे कुछ tribes हैं that are very close to the Manipur tribes. For example, हम देखते हैं Chin. Chin are the people from Myanmar, but they have close ethnic ties to Kukis. ठीक है, तो यहाँ पे वन इशू विद मणिपुर एंड म्यांमार इज वो जो पोरस बॉर्डर्स हैं, तो बहुत सारा यहाँ पे ट्रैवल होता है, मूवमेंट होता है. नाउ दैट ऑफ कोर्स इज अ कॉज ऑफ कंसर्न इन अ वे, बिकॉज इलीगल चीजें भी हो सकती हैं, ड्रग्स आ सकते हैं, आर्म्स आ सकते हैं, इंसर्जेंट ग्रुप्स को ये वेपन्स मिल सकते हैं. सो दैट इज वन इशू दैट मणिपुर फेसेस. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको बंद करने के लिए हैड स्टार्टेड FMR. ठीक है, FMR इज फ्री मूवमेंट रिजीम. पहले तो अलाउ कर दिया था कि यहाँ की कम्युनिटी वहां जाए, वहां की कम्युनिटी यहाँ जाए, 16 किलोमीटर्स तक तुम यहाँ पे मूवमेंट कर सकते हो. बट सेंटर ने इसको हटा दिया. ये जो फ्री मूवमेंट रिजीम म्यांमार के साथ था, इसको हटा दिया और बॉर्डर प्लेस किया, फेंस्ड बॉर्डर लगा दिया. नाउ कुकीज एंड नागाज आर वेरी अपसेट विद दिस, बिकॉज उनके जो एथनिकली क्लोज ग्रुप्स हैं जैसे कि चिन, इनसे इनकी अभी मुलाकात नहीं होती, इनके रिलेशंस अभी नहीं हो रहे हैं. दे आर नॉट एबल टू मीट विद द पीपल दैट दे हैव देयर क्लोज टाइज विद. सो दीज आर द इश्यूज, द 5 issues that are currently in place that we see in Manipur, and we are going to see probably Monday के दिन कि क्या इस टॉक्स के बाद जो पीएम गए हैं मणिपुर में, व्हाट इज द आउटकम ऑफ इट, क्या नतीजा है, क्या कोई पैक्ट साइन होता है, क्या प्रेसिडेंट रूल हटता है, ऑल ऑफ दिस इज लेफ्ट टू सी. सो मंडे को के दिन हम देखेंगे कि व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोग्रेशन. लेट्स नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल. ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है 2 कंट्रीज के बीच जिसका नाम है ZAPAD. ओके, ZAPAD 2025. सो ये हर 4 साल में कंडक्ट होता है किन 2 कंट्रीज के बीच में, बिटवीन रशिया एंड बेलारूस. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट टाइम जहां पे यूक्रेन जो कॉन्फ्लिक्ट के बाद, रशिया यूक्रेन वॉर के बाद ये पहली बार कंडक्ट हो रहा है. इट इज गोइंग टू बी अप टिल September 16. Now, what is the cause of concern is जो NATO countries हैं, इनको बहुत ही डर लग रहा है, बिकॉज बेलारूस एंड रशिया, ओके, दीज आर नॉट मेंबर्स ऑफ नेटो ऑफ कोर्स. तो ये जब ये ट्रायल्स और सब कर रहे हैं, क्या रशिया कुछ और प्लान कर रहा है, यूक्रेन को वापस एक अटैक करने वाला है. सो दिस इज लाइक अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर द अदर नेटो कंट्रीज. सो अगर हम मैप देखें, लेट्स सी वेयर एग्जैक्टली डज बेलारूस लाई. ये रशिया है, बेलारूस, एंड इनकी नेबरिंग कंट्रीज यूक्रेन, पोलैंड, लिथुआनिया, लतीविया, एस्टोनिया. सो अगर आप देखो ये जो कंट्रीज हैं, and these also, okay, so these are part of NATO. Ukraine is not part of NATO, ये याद रखना है. It kind of associates with them in a number of agreements and so, but it is not a full-fledged member. ठीक है, so जल्दी से NATO के दूसरे countries को भी एक बार देखते हैं. So if you want, you can take sort of a screenshot if you are able to see the names of the places. तो अभी तक I'll just give you a quick brief of NATO, because NATO का mention किया है बहुत बार, मॉक्स में भी हम देखते हैं ये आता है. So NATO जो है, it was signed by the Washington Treaty. It was signed by the Washington Treaty, and ये came into force in 1949. इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? ब्रसेल्स, बेल्जियम. ठीक है, टोटल कितने कंट्रीज हैं नेटो में? 32 कंट्रीज, और जो लेटेस्ट कंट्री है वो है स्वीडन. ओके, एंड अगर हम देखें हु इज द हेड ऑफ नेटो, नेदरलैंड्स के लीडर है ये, इनका नाम है मार्क रट. मार्क रट इज करेंटली द डायरेक्टर ऑफ नेटो. ठीक है, सो दिस वाज क्रिएटेड ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, मेनली एज एन ऑपोजिशन टू रशिया. सो ये यूएस और उसके एलाइज ने ये ग्रुप बनाया. सो लेट्स नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल. अगला आर्टिकल है वोटिंग के बारे में. तो इंडिया ने वोट किया है इन फेवर ऑफ द UNGA रेजोल्यूशन ऑन
Palestine. Now let's quickly see what is the current happenings here. तो एक resolution था जिसका नाम था Endorsement of the New York Declaration on the Peaceful Settlement of the Question of Palestine and Implementation of Two-State Solution. तो हमने सुना है with regard to the two-state solution between Israel and Palestine या to make a peaceful Palestine region. तो इसके बारे में बहुत सारे resolutions अभी तक पास हुए हैं. तो ये वाला resolution का नाम न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन है. यू हैव टू नो दिस नेम. ओके, तो न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन में वोटिंग हुआ था UNGA में, दैट इज यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में. और कितने कंट्रीज ने वोट किया? वी हैव 140 कंट्रीज दैट वोटेड फॉर इट. इस 140 कंट्रीज में हम देखते हैं 10 वर अगेंस्ट इट, लाइक अर्जेंटीना बिकॉज ऑफ कोर्स यूएस की साथीदार, हंगेरी, इजराइल, यूएस, दे डोंट वांट ऑफ कोर्स दैट पैलेस्टीन शुड गेट अ सेटलमेंट, पीसफुल सेटलमेंट ऑफ पैलेस्टीन, या ये टू स्टेट्स या उनको एक जगह दे, नहीं चाहती है ये कंट्रीज. 12 कंट्रीज ने एब्सटेन भी किया. व्हाट अबाउट इंडिया? इंडिया ने भी इसमें यहाँ पे वोट किया इन फेवर कि यहाँ पे होना चाहिए उनके लिए, या ये वॉर भी खत्म होना चाहिए. सो दैट वाज विद रिगार्ड टू द UNGA रेजोल्यूशन. एंड ये किसने चेयर किया था पहले? वी सॉ दैट इट वाज फर्स्ट सर्कुलेटेड इन जुलाई, जहां पे तभी कंट्रीज लाइक फ्रांस एंड सऊदी अरेबिया ने ये प्रपोज किया था. ओके, सो व्हेन दे वर द चेयर्स ऑफ दिस मीटिंग, फ्रांस एंड सऊदी अरेबिया ने प्रपोज किया था. एंड क्या ये बाइंडिंग है? द आंसर इज नो. ये जो रेजोल्यूशंस हैं नॉन बाइंडिंग होती है. फाइनल कौन डिक्लेरेशन देता है? UNSC. और UNSC में कंट्रीज कौन सी हैं? वी हैव P5 मेंबर्स, यानी कि 5 परमानेंट मेंबर्स लाइक US, UK, फ्रांस, रशिया, चाइना, एंड बाकी के 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स जो हर 2 साल के लिए अपॉइंट होते हैं. तो इनमें अगर जब ये पास करते हैं तभी ये बाइंडिंग होता है. जब UNGA पास करती है इट इज नॉट बाइंडिंग. ठीक है, सो दिस इज जस्ट you can understand with what the people want, what the countries want. That is the only reason we do this voting, so that everyone gets one vote and you understand the pulse of these countries as well. तो ये था with regard to UNGA. UNGA के प्रेसिडेंट का नाम क्या है ये आप अगेन मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे. व्हाट इज द नेम ऑफ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ UN? रिमेंबर हर एक साल में ये बदलता है, so especially if you're giving exam this year you should know the president also. ठीक है, proceeding to the next article. Okay, ये डिक्लेरेशन में क्या क्या बताया है इसके बारे में आई डिड नॉट मेंशन, सो लेट मी क्विकली मेंशन दैट एज वेल. कि उन्होंने बेसिक चीजें बताई है कि गाजा में जो वॉर है ये एंड करो. ओके, इंश्योर अ पीसफुल सेटलमेंट फॉर द पीपल ऑफ पैलेस्टीन. थर्ड, बेटर फ्यूचर फॉर पैलेस्टीनियंस, इजरायलीज एंड द पीपल देयर. ठीक है, ये कमिटमेंट किया है. एंड इजराइल को क्या यहाँ पे बताया है? इजराइल को बोला है कि ऑफ कोर्स वायलेंस बंद करो. ओके, एस्टैब्लिश अ पैलेस्टीनियन स्टेट. ओके, एक क्लियर पब्लिक कमिटमेंट दो की विद रिगार्ड टू योर टू स्टेट सोल्यूशन. ओके, एंडिंग वायलेंस, हॉल्टिंग सेटलमेंट ग्रैब्स, मतलब तुम यहाँ पे उनका जो जमीन छीनना ये सब मत करो, एनेक्सेशन बंद करो. सो ऑल ऑफ दिस इज जनरल. अगर मैं नहीं बताती तो भी आपको आइडिया पता कि व्हाट एग्जैक्टली वुड यू एक्सपेक्ट इन अ न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन. सो दीज आर द की फैक्ट्स दैट वी हैव एक्सपेक्टेड. नेक्स्ट वन वी हैव एन एनवायरमेंट रिलेटेड न्यूज, जहां पे सेंटर ने क्लियर किया है ट्रांसलोकेशन ऑफ 8 टाइगर्स फ्रॉम तडोबा एंड पेंच. यहाँ पे आपको दिख रहा है तडोबा एंड पेंच. तो ये जो टाइगर रिजर्व से 8 टाइगर्स जाएंगे सह्याद्री टाइगर रिजर्व. वेयर इज सह्याद्री टाइगर रिजर्व? इट इज इन महाराष्ट्र. सो व्हाई आर वी डूइंग द ट्रांसलोकेशन ऑफ देम? इट इज बिकॉज यहाँ पे कनेक्टिविटी ऑफ टाइगर्स, टाइगर हैबिटेट्स कर रहे हैं हम. ओके, वी आर ऑल्सो इंश्योरिंग दैट दीज रीजन्स आर प्रोटेक्टेड, बिकॉज यहाँ पे जो टाइगर्स हैं कम भी हुए हैं, लाइक देयर इज नॉट मच ब्रीडिंग दैट इज हैपनिंग. ठीक है, तो दैट वाज अनदर रीजन जहाँ पे उनको लगा कि सह्याद्री का टाइगर पॉपुलेशन को बढ़ाना चाहिए. तो 8 टाइगर्स का घर इन्होंने चेंज कर लिया. दे हैव शिफ्टेड देम. तो ये था विद रिगार्ड टू दिस. हु इज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ दिस? यस, इट इज द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो 2005 में बना था अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972. क्विकली लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द सह्याद्री टाइगर रिजर्व. सह्याद्री टाइगर रिजर्व is spread over 1165 square kilometer. Of course not important.
बट अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लगता है, कोल्हापुर, सांगली, सतारा, रत्नागिरी। 2010 में ये टाइगर रिजर्व बना था, टाइगर रिजर्व बना था बाय जॉइनिंग टू थिंग्स, चंदोली नेशनल पार्क एंड कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एंड यहाँ पे ओनली ट्रांजिएंट टाइगर्स होते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉपर पॉपुलेशन नहीं है, सो दैट वाज द कॉज ऑफ कंसर्न एंड देयरफॉर दे हैव शिफ्टेड। नाउ क्वेश्चन टू यू इज, व्हिच स्टेट्स do not have a tiger reserve? ये मुझे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। Which states do not have a single tiger reserve? Add the answer in the comment section. We've already done अगर कौन से biggest tiger reserve है, smallest tiger reserve है, ये already कर लिया है। Just recap कर रही हूँ मैं। नागार्जुना श्रीसालम, ओके, नागार्जुना सागर श्रीसालम टाइगर रिजर्व ये आंध्र प्रदेश में है, और बोर टाइगर रिजर्व ये मध्य प्रदेश में है। सो बिगेस्ट टाइगर रिजर्व, स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व, कौन से टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा टाइगर्स पाए जाते हैं? सो अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, पॉपुलेशन में जिम कॉर्बेट जो है उत्तराखंड में, जिम कॉर्बेट जो है उत्तराखंड में। सो दीज आर सम फैक्ट्स दैट यू हैव टू नो। प्रोजेक्ट टाइगर, जहां पे टाइगर रिजर्व्स को बताना कब स्टार्ट किया? 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ इंदिरा गांधी। Let us now proceed to the next article. India-Mauritius ties deeply rooted इन स्पिरिचुअलिटी एंड कल्चर। नाउ वी नो कि मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर आए हैं जिनका नाम है नवीन चंद्र रामगुलम। इनके प्रेसिडेंट का नाम क्या है? धर्म गोकुल, ओके। एंड इनका जो कैपिटल है इसका नाम है पोर्ट लुइस, ओके, पोर्ट लुइस। सो इसमें हम देखते हैं कि ये कहाँ पे आए हैं? उत्तर प्रदेश में आए हैं। ही ऑफर्ड इन द राम टेम्पल, अयोध्या टेम्पल, राम टेम्पल इन अयोध्या। He is the second prime minister to come to visit the temple after the prime minister of भूटान। इनकी वाइफ के साथ ये कंपनी कर रहे हैं। सो मॉरिशस, अगेन इंडिया मॉरिशस रिलेशंस हमने काफी किया भी है। वी ऑल्सो डिस्कस कि इनका जो नेशनल डे है ये 12 मार्च है, ओके, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिया में जब दांडी मार्च हुआ था। सो दे ड्रॉ पैरेलल विद इंडिया स्ट्रगल, बिकॉज हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वही मॉरिशस में इन द फॉर्म ऑफ इंडेंचर्ड लेबरर्स ब्रिटिश ने उठा के वहाँ दे दिया थे। सो इसीलिए थोड़ा हमको कॉमनैलिटी देखते हैं हम। 12 मार्च इज व्हेन दे सेलिब्रेट नेशनल डे ऑफ मॉरिशस, जहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे एज द चीफ गेस्ट। तो यहाँ पे कुछ फैक्ट्स बताए हैं, बेसिक टेम्पल के बारे में ही था जहाँ पे वो ऑफर किया एंड एवरीथिंग, बट बेसिक हमने ऑलरेडी कर लिया है। सो लेट्स end the discussion today. Thank you so much for joining in and I hope you have understood all the important current affairs. I will see you in the next video जहाँ पे हम 20 questions discuss करेंगे आज के current affairs से। Thank you so much for watching.